The basic quality for a leadership is confidence. Absolutely. And that confidence was always there that I'm here to do something, some change. तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज जस्ट नॉट merely for degrees. Right. It is basically to learn techniques. रैपिडली आप आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो और इतना कर सकते हो कि आपको अपने कहाँ से शुरुआत की ये देखने के लिए भी आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी. From Kashmir to Kanyakumari, you have entire India's representation over here. So today, everyone, we have somebody very special, as Sharad rightly said. You know, we have been following you for quite a long time. It's like what I loved about you is that हम जब आपके बारे में पढ़ रहे थे, जब आपको काफी वक्त से जब हम फॉलो कर रहे हैं, you are somebody, a very young leader. बहुत कम हमें देखने मिलता है सर कि a young leader who's just making sure that he's spreading an awareness around education, who is making sure that there's an awareness around poverty. तो आपने सर इस पॉलिटिक्स में आपकी जर्नी की शुरुआत करीबन 2000 में हुई, right? And आपने आपकी जर्नी, so your grandfather was a freedom fighter. आपके मदर, आपके फादर, सभी लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है सर. तो मुझे ये बताइए, वी ऑल रियली वांटेड टू नो दैट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू पॉलिटिक्स. मतलब आप चाहते तो सर आप बहुत कुछ चूज कर सकते थे, but what made you get into this? First of all, though, I would like to thank you for having me here. Thank you, sir. It's our pleasure. I'm just going through the names written on the Zoom windows, and I can see that from Kashmir to Kanyakumari, you have entire India's representation over here, which is a great achievement. And I think this is a beauty of a technology that sitting in Mumbai, you can talk to people across the globe and teach them about something which will make them financially I think independent. a good part of post-COVID that people so actually got comfortable with the technology. So basically circumstances are very important to Absolutely. make you habitual of something. Agree. Technology was always there, Zoom was always there, Google Meet was always कुछ there. था, लेकिन जब तक हम लोग force नहीं हुए. हाँ मतलब there was no choice. There was no choice. And then we बराबर. had to do it, and that's how technology has taken a shape in last 2 years. Absolutely. And I would say I to prefer all online meetings these days. I spend at least 1 to 2 hours every day on online meetings. And just save so much of the time. Time, energy, अपने comfort zone में रह के you can think better. Agree. आज एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 2-2 घंटा लगता है. Right. So coming back to your point कि कैसे इंस्पिरेशन मिला. सो सी जिस फैमिली में हम पले बड़े हैं उस फैमिली का एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमेशा रहता है. I agree. तो इसीलिए तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, क्योंकि उसको एक अपब्रिंगिंग होती है, उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स उस करियर के पता होते हैं, एंड ही ट्राइज टू टेक द लेगेसी अहेड ऑलवेज. Right. तो जितने भी बेटे होते हैं या सेकेंड थर्ड जनरेशन के, दे ट्राई टू टेक द लेगेसी अहेड. तो उसी तरह से आई ऑल्सो गॉट ड्रैग्ड इनटू द सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, and then I was a student's leader, and then That leadership was always there. of course leadership, the basic quality for a leadership is confidence. Absolutely. And that confidence was always there that I am here to do something, some change. लेकिन 20 साल लगे मुझे भी समझने में कि मुझे क्या करना है और किस दिशा में करना है. But I was a student's leader, and that's how I got into this. And then जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई वैसे वैसे मैं खुद को रोल में डालता गया. That's how it is now. At the same time, sir, हमने ये भी देखा कि so you come from a family background जहाँ पे सभी लोग political background से हैं, but you also studied political science, right? You also went, got your education in place. So बहुत बार हम देखते हैं कि people want to do it and they just start doing it and they learn along the way. But what you also did is कि आपने वो करना था तो आपने उससे रिलेटेड पढ़ाई भी की.
you did your MA, you did your studies in political science, and then you proceeded forward. So how was this entire education, how did this entire education help you to do it more better? Yeah, of course, education helps you in doing things better. Right. This is a basic quality of coaching. Me and my younger brother, he is doctor. Okay. We both can swim, but we are not very expert in swimming. Experts. Okay, we don't know the techniques and everything. So लेकिन छोटा मोटा swimming we always used to do. बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमको भोसला मिलिट्री स्कूल भी भेजा था नासिक में, सो दैट वी लर्न स्विमिंग एंड ऑल दैट स्टफ. अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हम भाग के आ गए क्योंकि वो मिलिट्री लाइफ इज अ वेरी टफ लाइफ. सो अभी वी स्विम, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कल एक वीडियो भेजा एंड ही इज लर्निंग स्विमिंग थ्रू वन कोच. And in a video he has sent me that Dada, within 3 days I can swim non-stop for like 45 minutes or whatever, and he can swim underwater, like मतलब पानी के अंदर से he can do the swimming and all. And उसमें लिखा है कि coaching makes a difference. I so agree. तो उसके कोच ने उसको बोला, जो स्विमिंग करने वाला था, कि 10 दिन के अंदर there will be only 10 sessions for swimming. हमने, और मेरी बेटी भी स्विमिंग के लिए जाती है, 2 साल से जा रही है, एंड नाउ शी इज इनटू बिगिनर, थोड़ा एडवांस बिगिनर टाइप्स, वो उसके स्टेज वाइज चल रहा है. एंड उसके कोच ने, मेरे भाई के कोच ने उसको कहा कि 10 दिन में ही हैज स्टार्टेड डूइंग वंडरफुल इनटू स्विमिंग. सो लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज जस्ट नॉट मेयरली फॉर डिग्रीज, इट इज बेसिकली टू लर्न टेक्निक्स, न्यू आइडियाज. Now you are teaching trading to a lot of people. अब ट्रेडिंग सबको पता है कैसे करना है, क्या करना है, बट जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती है, दिस ओनली कोचिंग कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इट इम्प्रोवाइजेज योर परफॉर्मेंस बाय 10x. आई सो एग्री टू इट. एंड जैसे कहते हैं कि हम सीखना कभी बंद नहीं होता. It is something that you have lifelong learning. It's like चाहे आप 18 साल पे ग्रेजुएशन 18 साल हो, 25 हो, 50 हो, सीखना continuously on जरूरी हो जाता है. So as you rightly said that it's very important to have a coach who inspires you in everything that you do it. So at various points in life you get inspirations from different people. Right. You can't always be inspired by one person. I agree. लोग कहते हैं कि मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता है. Right. जैसे कभी सिचुएशन बेस्ड होता है, दिस इज ऑल सर्कमस्टेंसेस बेस्ड. बट माय ग्रैंडफादर, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वाज कंट्रीब्यूटिंग इनटू नेशन बिल्डिंग through cooperative movement and educational institutions and sugar factory and all he started. And he made an impact that at least 50,000 families in my area got lives were changed. So that is an inspiration for me into politics. If you are into politics, your position, your power should be able to change the lifestyle and of the people improve their lifestyle wherever they are. You should be able to take them to the next level. So this is an inspiration for me into life. So I want to create something which people will remember for generations. That's the inspiration. And you are already doing that in a great way, sir. So ये पूरी जो जर्नी होती है, ये जर्नी बहुत ही, बोलते हैं ना, रोलर कोस्टर राइड रहती है. कई बार उतार चढ़ाव, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं. And you have your own struggle in this journey as well. How do you get back to the work after every time you struggle or you have a hard time? Because a lot of time, you just have it like, no, let's just give it up. It's not happening. So how do you get back out of those moments कि नहीं यार करना है? Because यहाँ आप अपने लिए नहीं, सबके लिए, लोगों के लिए कर रहे हो. And when things get difficult, how do you get back to? See, frankly speaking, of course मेरा पूरा जो पॉलिटिकल जर्नी रहा है 23 साल का, इसमें बहुत चढ़ाव और उतार रहे हैं, और काफ़ी दिक्कतें भी आई है. जब ऐसे टाइम आता था तो मुझे मैं फ्रस्ट्रेट भी होता था, डिप्रेस्ड भी होता था, और ऐसे कोई एक टेक्निक नहीं थी मेरे पास उससे बाहर आने की. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हर बार किसी ना किसी बहाने, मेरी मदर मुझे मोटिवेट करती रहती है, मेरी वाइफ मुझे मोटिवेट करती है, तो ये सारे लोग जो मेरे आसपास है जो वो मोटिवेट करते रहते हैं, वो मेरा
बने रहते। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इन 2020 व्हेन कोविड स्टार्टेड, कोविड ने और एक अच्छी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के साथ दी वो था कि अपने आप के लिए कुछ टाइम हमें मिल रहा था। अग्री। तो उस टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया जो दिल्ली रहती है, तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि सत्यजीत, यू नीड टू वर्क ऑन योर एम्बिशंस एंड योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड उसने मुझे बॉब प्रॉक्टर से वेरी वेल नोन बॉब से इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब इंट्रोड्यूस इन सेंस उसके आइडियाज से, टीचिंग से। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग टू बॉब। एंड मुझे उससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा लाइफ में हुआ है। आज मैं नेगेटिव कभी बनता ही नहीं, स्ट्रेस मुझे आता ही नहीं, चाहे कुछ भी रहे मुझे कोई ये आता नहीं है। इसका कारण है कि उसने एक जो मुझे सिखाई है कि आपका गोल अगर क्लियर है और उस गोल की एक फ्रिक्वेंसी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बेसिकली सिर्फ कॉन्शियस माइंड के इंस्ट्रक्शंस लेता रहता है। तो यू हैव टू ऑलवेज बी इन दैट फ्रिक्वेंसी कि आपको ये अचीव करना है, आप ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हो। एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर व्हिच बॉब आल्सो स्पीक्स अबाउट। तो मुझे लगता है कि इसका प्रैक्टिस जो करेगा उसको लाइफ में कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। I so agree to, and I have been a strong follower of Bob's teachings as well. So, and जैसे आपने अभी गोल की बात की कि अगर गोल क्लियर है ना, अगर विजन क्लियर है, गोल क्लियर है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट जब वो क्लियर है ना तो यू गेट द स्ट्रेंथ टू फेस इट एज वेल। एंड आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 टाइप के गोल्स होते हैं। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दैट 3 टाइप्स ऑफ गोल्स जो आप हमेशा बात करते हो। इट इज बॉब्स टीचिंग। या बट आई रियली वांट टू हियर इट फ्रॉम योर एंड। नहीं तो बॉब कहता है कि 3 टाइप के गोल्स होते हैं, ABC। ए होता है कि जो आपने पहले करा हुआ है और दोबारा आपको वो करना है। तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उसने 500 करोड़ का टर्नओवर किया हुआ है और उसको पता है कि वो कैसे करना है। 2000 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसने 500 करोड़ का टर्नओवर किया है। तो 22-23 का भी अगर उसने गोल 500 करोड़ रखा तो उसको गोल ए कहते हैं हम लोग, कि उसको पता है कि कैसे अचीव करना है और वो वही उसको कर रहा है। बी गोल ये होता है कि वही बिजनेसमैन 1000 करोड़ का टर्नओवर रखे, टारगेट रखे कि मुझे 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है, और उसको पता है 500 तक तो वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और 500 से 1000 कहाँ पहुंचना है उसको पता है। ही नोज द वे टू अचीव दैट गोल। तो उसको बी गोल कहते हैं कि इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट गोल एंड सेम गोल इज बीन रिपीटेड, तो उसको ए होता है। जो गोल आपको पता है कि आप अचीव कर सकते हो अगर कुछ चीजें करके, तो उसको बी कहते हैं। और एक होता है फैंटेसी गोल, जो आपको पता ही नहीं कि आप कैसे अचीव करोगे। तो जो 500 करोड़ वाला जो बिजनेसमैन है वो अगर चाहता है कि मैं अदानी अंबानी के टाइप में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, एंड दैट इज हिज गोल, जो उसको पता नहीं कि वो कैसे अचीव करना है, लेकिन वो उसका गोल है, तो उसको फैंटेसी गोल कहते हैं। तो उसको गोल सी कहते हैं। हमको बचपन से स्कूल में सिखाया गया, हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि फैंटेसी मत करो। और अगेंस्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है कि हम फैंटेसी के अगेंस्ट है। आपका बच्चा अगर कुछ आपको ऐसी चीज बताता है तो मतलब हम तो मजाक उड़ाते हैं और उसको बोल देते हैं भाई ये हो नहीं सकता, हमारे फैमिली में हमारी उतनी औकात नहीं है, हम उतने बड़े नहीं है, हम ये सोच नहीं सकते, आप बंद कर दो इसको, और उसको डिस्करेज किया जाता है। तो फैंटेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टू अचीव द गोल। एंड दोस आर द पीपल हु डू वंडर्स। ऑफ कोर्स आप देखो ना कि राइट ब्रदर्स जैसा जो बंदा है, 2 भाइयों जो साइकिल मैकेनिक थे, उन्होंने 1898 में उनके दिमाग में आया कि हम इस साइकिल्स के दोनों साइकिल को एक साथ करके इसको उड़ा सकते हैं, और 1904-1905 में उनका एरोप्लेन सक्सेसफुल हो गया। तो अगर वो उसके माँ बाप या उसके अगल बगल के लोग उसको कहते हैं कि भाई ये सुनते तो वो हो ही नहीं सकता था। So interesting. I so agree to it. Sir, तो ये पूरे जर्नी में okay, there are lot of people even now that we have people यहाँ से, जैसे आपने कहा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, I think and वर्ल्ड से भी काफी सारे कंट्रीज अलग अलग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। So yeah, there are lot of youth out there, okay, but कहीं ना कहीं जो यूथ है ना आज के डेट पे, वो हमेशा सेफ ऑप्शन ढूंढने के लिए निकल रहा है कि यार अपने वो आज के काम में इतना ज्यादा बिजी है, चाहे वो हम उसके काम में बोले
या एंटरटेनमेंट में बोले या सोशल मीडिया में बोले, व्हाटएवर, बट इतना ज्यादा बिजी है अपने इसमें दैट यू नो वो पॉलिटिकल करियर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है, और probably he is not even thinking of what can he contribute to this country. Where is this gap, sir? सी पॉलिटिकल करियर के बारे में सोचना सबने चाहिए, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि Right. वो तो ठीक है, हर एक की चॉइस होती है कि It's a उसको personal कितना choice. टाइम उसको इस कॉज के लिए देना है। और Right. सोशल और पॉलिटिकल जो करियर है वो बहुत टाइम डिमांडिंग और काफ़ी डिमांडिंग होता है। इसमें आपके पास फैमिली लाइफ नहीं होती है, इसमें आपके पास टाइम आप नहीं दे सकते, Right. बहुत सारी चीज़ें उसकी होती है। लेकिन हर एक जो हमारा यूथ है, हर एक जो नागरिक है इस देश का, वो फाइनेंशियल वो बेसिकली पॉलिटिकली लिटरेट होना चाहिए। अब जब तक वो पॉलिटिकली लिटरेट नहीं हो सकता है तब तक वो अच्छे से मतलब जो आपके दिमाग में है कि आपने जो मुझे पूछा कि उसको लग रहा है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ इस देश के लिए, तो उसको पता ही नहीं कि उसके अधिकार क्या है, उसके अधिकार क्या है। अब जैसे मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं जो वोट नहीं करते और वो हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे देश में खड्डे हैं, हमारे देश में ट्रैफिक है, हमारे देश में महंगाई बढ़ गई है, हमारे देश में एयरपोर्ट पे 2-2, 3-3 घंटे की क्यू होती है, और ये सारी जो कंप्लेंट्स करते रहते हैं। लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो उनको पता नहीं है। और सोल्यूशन यही है कि आपका राइट है, यू नो, वोटिंग इज योर राइट, टू चूज करेक्ट पीपल इज योर राइट, एंड दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। That's a social responsibility we all have. ये मुझे लगता है कि ये समझना और उस पे एक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम यूएस के साथ अगर हमको कंपेयर करें इंडिया को, तो यूएस इज इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट यूएस इज अ मैच्योर्ड डेमोक्रेसी। यूएस में 95% लोगों के ओपिनियंस डिसाइडेड है कि किसको वोट करना है, कब करना है। हमारे यहाँ हमारा सर्वे ये कहता है कि 60% लोग जो है वो पोलिंग बूथ में जाने के बाद मशीन में किसका बटन दबाना है वो डिसाइड करते हैं, और 20% लोग जो है वो आइडियोलॉजी और इससे वोट करते हैं, और 20% तो पैसा लेके या कुछ चीज़ों के लेके वोट करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये अधिकारों की लड़ाई है, हमें हमारे अधिकार पता है, वोटिंग हमारा अधिकार है, और ठीक से वोट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जब तक हम लोग नहीं सिखाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। एंड हर जो भी तकलीफें हैं, ओके, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट, यू नो, चाहे आप वोट करके करो, चाहे आप किसी और तरीके से पार्टिसिपेट करके, बट एक यूथ का पार्टिसिपेट होना टू एंड हैविंग दैट थॉट प्रोसेस ऑफ यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज यू राइटली सेड कि इस चीज को अवेयरनेस होना एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक द टू थिंग्स विच इज करंटली मिसिंग, वन इज पॉलिटिकल लिटरेसी एंड अनदर इज फाइनेंशियल लिटरेसी। आई थिंक दिस इज अगेन समथिंग जो हमें अपनी कंट्री में स्पेशली बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है। हम सब पैसे बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, राइट? सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करें, सभी लोग अपने अपने हिसाब से पैसे बना रहे हैं, बट जब उस पैसे से पैसे बनाने की बात आती है या उस पैसे को सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, दिस फाइनेंशियल लिटरेसी इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी मिसिंग। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अप ऑन इट? नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी तो हमारे देश में है ही नहीं। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी होती और अगर लोग इतने अवेयर होते तो मुझे लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ही नहीं थी। आप उसी चीज़ पे काम कर रहे हो कि आप लोगों को सिखा रहे हो कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम का जो किताब है, जो बहुत पॉपुलर है आज पूरी दुनिया में, आई थिंक उस किताब में भी लिखा हुआ है, और वही चीज़ हमारी इंडियन सोसाइटी में भी लागू है। वेरी अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में पैसे की बात करना ये हमारे घर में पाप के बराबर है कि भाई पैसे की बात मत करो। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे झाड़ पे नहीं उगता है नहीं, और ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती है बचपन से, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। कहीं भी पैसे कैसे कमाने, पैसे कैसे बचाने, पैसे कैसे बढ़ाने, ये कभी नहीं सिखाया। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी जो जिंदगी है वो पैसे के ही लिए है। अल्टीमेटली आपको कुछ भी करना हो, व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ही है कि आपको जो चाहिए वो आप तब जब चाहिए तब कर सकते हो, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए? अब मानो कि कोई ट्रेकर है, उसको माउंट एवरेस्ट जाना है,
उसका पैशन है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। और उसके फिर उसकी आधी एनर्जी आधी क्या ज़्यादा, सर कितने माउंट एवरेस्ट के जो क्लाइंबर्स है वो मेरे पास आते हैं कि कैसे हम फंड रेजिंग कर सकते हैं, तो उनका तो 70% टाइम जो है फंड रेजिंग में जाता है। राइट। तो वो फंड रेजिंग करते हैं। अगर मानो कि वो बच्चा स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी सीखा हो और उसने तब से पैसा को बढ़ाने की कोशिश शुरू की हो, और वो माउंट एवरेस्ट उसको चढ़ने का टाइम आता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? 35 lakhs। 35 lakhs मुझे लगता है कि इतनी छोटी चीज है। आई एग्री। अगर उसको स्कूल एजुकेशन में ही उसको फाइनेंशियल आप सिखा दो। वॉरेन बफेट का एग्जांपल हम लोग हमेशा देते हैं कि आज वो उसका वर्थ होगा ऑलमोस्ट 95 बिलियन के आसपास है, प्लस 95 बिलियन के आसपास उसका वर्थ है। 95 बिलियन में से 80% ऑफ हिज एसेट्स, मतलब नेटवर्थ, इज क्रिएटेड आफ्टर हिज एज ऑफ 65। मतलब 95 बिलियन में से 65% उसका 65 के बाद उसका 80% वेल्थ क्रिएट हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 9। राइट। 9 से उसने किया, फिर कंपाउंडिंग का जो ब्यूटी है वो उसको मिला, और ये हुआ। आज डॉक्टर्स है हमारे, इंजीनियर्स है, आप प्रोफेशनल किसी आर्किटेक्ट्स है, आप किसी के भी पास जाओ, टीचर्स है, किसी के भी पास जाओ जिसका इनकम ठीक ठाक है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। और वो फिर हमारा इंडियन मेंटेलिटी है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, रियल एस्टेट और एफडी तो सबसे सेफ हम लोग मानते हैं, which is not the case. Your investment should be in all asset classes, and majority should be in equity. Right. This is what worldwide is happening, but unfortunately we are not aware of it. तो मुझे लगता है कि financial literacy should start immediately right from the school education. And it's like, you know, जब बचपन से हमें जब सिखाने आया जाता है, when you talk about financial literacy, whether I said how do you make money, how do you save money, and how do you grow your money. This is something, you know, we start actually learning this जब हम, you know, या तो हम जब काम करना शुरू करते हैं and we learn it from our own ways, या probably हमारे family के आसपास के experience से. But I think if this is taught right, सबसे ज्यादा केसेस फाइनेंशियल फ्रॉड्स के इंडिया में है, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो, चाहे वो लॉटरी के फ्रॉड्स हो, चाहे वो किसका मोबाइल ले लिया, किसी के अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, किसका ये हो गया, चीटिंग के केसेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ऑफेंस जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और इसका बेसिक कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। लोगों को पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कैसा कमाना है वो पता नहीं, इसलिए कोई भी आता है और आपको उल्लू बना के चला जाता है। एंड तुम सही गलत को पहचान ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें इट्स लाइक लॉट ऑफ टाइम, यू नो, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जो अपने को सुन के भी लगता है कि यार दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, मतलब इसमें पैसे लगा ही नहीं सकते। बट देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी बिकॉज उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये तो सही है, ये तो गलत है। एंड एज यू सेड, यू नो, दिस इज व्हाट द इवेंट दैट यू आर डूइंग इट नाउ इज जस्ट वन स्टेप की, यू नो, ऑन स्प्रेडिंग दिस फाइनेंशियल लिटरेसी। बट एज यू राइटली सेड, यू नो, दैट वी शुड स्टार्ट दिस फ्रॉम द स्कूल। तो अगर इससे मुझे याद आया सर कि आज अगर हम हमारे पॉपुलेशन की अगर बात कर रहे हैं, आई थिंक वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड अराउंड 8 बिलियन एंड India's population has crossed more than China's population. So what's good about it, and so we have a force now, right? But हम क्या चीजें करें that we get into the super, what is it that we all need to work on which will just help us up? See, my personal opinion is that it has both the sides. You know, population is also strength, also weakness. A weakness. Strength because it is number. It is the biggest market in world. The biggest market. मार्क जुकरबर्ग इंडिया आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलता है, उनके साथ चाय पीता है. It is not because he is in love with Modi or he is in love with India. It's not the case. It is numbers. आज फेसबुक का जो है, फेसबुक में नंबर 1 फेसबुक अकाउंट जो है वो यूजर्स जो है वो इंडिया में है, उसके बाद यूएस में है. राइट. सो नंबर्स हमारे जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं पूरी दुनिया से, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे वो कंज्यूमर मार्केट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो आईटी हो. नोबडी कैन इग्नोर इंडिया एनीमोर.
Right. Nobody can It's ignore like India one anymore. country and you get to tap around So, 1/5 of the world population. Yeah, so this is one reason why population is a strength. दूसरा एक प्लस पॉइंट इसका ये भी हो चुका है कि हमारे जो माइग्रेशन करके लोग बाहर जा रहे हैं, Right. वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ वो फाइनेंशियली अच्छे से काम कर रहे हैं. Right. टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है, यूएस जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. यूएस टू ऑस्ट्रेलिया हर देश में इंडियंस है. अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियंस बहुत Right. अच्छे, बहुत भारी संख्या में है. और ये लोग वहाँ जो जा रहे हैं वो वहाँ के कंट्री के भी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Right. तो वो वहाँ पे भी एक वोट बैंक बन चुके हैं. I get it. मतलब अगर कीनिया का इलेक्शन है Right. तो कीनिया के इलेक्शन में भी इंडियंस का इम्पोर्टेंस है. Right. कनाडा में तो इंडियंस मिनिस्टर्स है. Right. यूके में तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है. Right. तो सो इंडिया हैज बिकम मतलब बोथ वेज. Right. विद इन इंडिया इट्स अ Within बिग India, मार्केट. Right. आउटसाइड इंडिया वी आर We are इन्फ्लुएंसर्स. influencing, we're creating an impact. there as तो पॉपुलेशन का ये प्लस पॉइंट है. लेकिन उसका नेगेटिव साइड ये है कि हम इतना पैसा पंप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. well. हम रेलवेज बना रहे, हम मेट्रोज बना रहे, हम बुलेट ट्रेन बना रहे, हम रास्ते बना रहे, लेकिन सारा कम पड़ रहा है. हम कहीं भी जाए भीड़ ही हमें दिखाई देती है, क्योंकि इतनी रैपिडली हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इसको नहीं कर सकता है. सो दिस इज अ नेगेटिव साइड ऑफ, मतलब अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम in having population. Infra is the only problem. Is the only- Infra can't handle this big number. और हम लोग इस पे काम कर करके मतलब हम पंप कर रहे पैसा, डाल रहे, लेकिन फिर भी हम उसको केटर नहीं कर पा रहे. The speed at which it's growing is way more high. अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स उसके कारण कितने बढ़ गए. रिसेंटली आई ट्रांसलेटेड वन बुक इन मराठी, सिटीजन विल करके है, which was written by San Francisco mayor. He is now California's governor and it is on using technology and people's involvement in a governance. So वो बुक मैंने मराठी में ट्रांसलेट किया है. एंड वो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हाउ डिजिटली we can do the governance and do a lot of impactful things, and how people's involvement is important in any progress of any country. So इसके ऊपर वो किताब है. क्योंकि आज हम जानते हैं कि अब जैसे मुंबई है, मुंबई के अगल बगल वाला जो एरिया है, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, ये वो, मतलब 3-3, 4-4 घंटे लोगों को लगते हैं यहाँ से घर जाने के लिए, घर से वापस आने के लिए. तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस बंदे की, वो यहाँ आके वो होती ही नहीं है. क्योंकि उसका स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से. तुम्हारे ऑफिस का बंदा जब नीचे उतरता है तो उसका स्ट्रगल वहां से शुरू होता है कि उसको टैक्सी नहीं मिलती है, फिर उसको बस नहीं मिलती है. तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. सो आई थिंक पॉपुलेशन का वो इम्पैक्ट जो है उसको भी समझना चाहिए. Right. I agree. Sir, so we discussed a lot of things here. What is that 3 messages that you would love to give it to everyone who's attending, who's listening to this over social media, on YouTube as well? 3 messages that you would love to give it to everybody else out there. So first, of course, as I said, कि politically you should be alert, aware. Right. आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. आपको उसके ऊपर सोचना चाहिए. And political literacy is very important, so you have to be very alert. As a citizen, आपको आपके rights पता होने चाहिए, आपकी जिम्मेदारियाँ भी पता होनी चाहिए. Secondly, financial literacy is also very important. आपको financially बहुत strong होना चाहिए, क्योंकि ultimately सुपर पावर हम तभी बनते हैं जब हम financially strong होते हैं. तो financial independence is also very important, जो हमें करना चाहिए. बहुत सोच समझ के हमें काम करना चाहिए. और एक छोटा मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हमें जो बचपन से सिखाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप करो. हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करो. अगर आपको आपके जो बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करो, फिर उसको अचीव करो. मुझे लगता है ये गलत मीथ है. कंप्लीटली दिस इज रॉन्ग. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्वांटम लीप. क्वांटम फिजिक्स जैसे होता है वैसे क्वांटम लीप होता है. तो आपको जो है, आप अगर अच्छे से गोल रखो और अच्छी स्ट्रैटेजी रखो और स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क की भी बहुत ज़रूरत नहीं है. स्मार्ट वर्क अच्छे से करो तो आप 10-15 जो स्टेप्स है वो एक साथ आप उसके आगे जा सकते हो और एकदम रैपिडली आप आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो. और इतना कर सकते हो कि आपने कहाँ से शुरुआत की ये देखने के लिए भी आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़े. इतना प्रोग्रेस आप कर सकते हो. यही मैसेज है मेरा. Wow, that's amazing. So that's amazing. So
you are working on various projects, I would rather say. Which is the one that you're most excited about, ki, or which is that one thing that you want to work on? एक चीज अगर आपको बदलनी हो, like among everything that you're working on, नहीं. what is that one thing that you strongly want to work it on? See, मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज की फॉर ऑल. स्कूल एजुकेशन देखो, हमारे बच्चे हर चीज वहीं से शुरू हो. वहाँ से ही शुरू होता है. हम जाते हैं यूएस में, तो यूएस में हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. जैसे ही हम इंडियन एयरपोर्ट पे उतर के आते हैं, हमारे डिसिप्लिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना इंडियंस के, वो घुसा ही नहीं है कि कैसे उसको फॉलो करना है. और ये सारी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि एक राइट एज में आपको अच्छी तरह से लोगों को सिखानी चाहिए. और उसके लिए मुझे लगता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज समथिंग वेयर वी शुड वर्क हार्डर. That's interesting. Last question before we close for today's session was, it's been an amazing journey for you. You know, you have been doing this for so long. I want to know about one very interesting and one incident where it was difficult, struggle, but you got out of it. एक होता है कि हमने ये किया and there's a kind of a satisfaction when you achieve it, कि आपने ये किया, उसका result मिला, and there's a different level of happiness and satisfaction. One strong achievement and one strong challenge that you faced it and you got out of it. नहीं, ऐसे आई वोंट बी एबल टू इमीडिएटली गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन सिचुएशन, बट देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस, लाइक मेनी टाइम्स वी हैव टू फेस इट, कि स्ट्रगल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट देन वी वंस वी अचीव, देयर इज अ सेटिस्फैक्शन. काफ़ी चीज़ें जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने की है. जैसे व्हेन आई वाज अ यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो मेरी जो पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग जो थी, क्योंकि आई हैड ऑलमोस्ट 700 ऑफिस बेयरर्स इन महाराष्ट्र अंडर माय लीडरशिप, तो उसमें से जो है वो सिर्फ 5 ही विमेन और 5 ही लड़कियां उसमें आई थी आउट ऑफ 700. तो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी, कि मैंने कहा यार 50% विमेन की बात हम लोग करते हैं और यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है. So in my tenure, I was able to take that number to 33%. Wow. And basically, to achieve that number and to bring more and more women and girls into politics, I think the most important thing is to create an environment which is safe and secure for them. And I was able to do that, so that's the biggest achievement I could do in my tenure. And challenges तो बहुत होते हैं, challenges तो every day we face a challenge. Right. But as I told you that my purpose to be into politics is to create something for which I'll be known for the generations, और कुछ अच्छा काम मेरे हाथ से होना चाहिए. तो मैं रोज यही सोचता रहता हूँ कि ऐसे क्या, अभी तक मुझे वो चीज़ मिली नहीं है, बट मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसा मैं कर सकूँ कि मैं कुछ एक impactful change ला सकता हूँ. You're already doing that, sir. But what you rightly said, Abhi, कि bringing that number from 57 to 33%, that's like a big thing to do. There are a lot of women, sir. अभी यहाँ पे प्रोग्राम में भी कई सारे women attend कर रहे हैं, and कहते हैं ना कि it's very important that अपने इंडिया में स्पेशली जब हम we still have this thing कि like women है ना तो तुम घर बैठ जाओ, वो सपोर्ट जो घर से मिलना होता है ना, वो आज भी इंडिया में एक वुमेन को नहीं मिलता है. बट आई थिंक दैट अवेयरनेस इज अगेन समथिंग दैट वी ऑल हैव टू ओपन अप, इज दैट you need to give her freedom, you need to give that space to every woman in the house to go explore, learn, fail and do it. I think जिस दिन हम सब इस तरीके से सोचने लग जाएंगे, there'll be lot of women out there, because lot of women can bring lot of potential and do lot of things in the country as well, and we have so many great examples doing that in our country. So thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for बहुत having अच्छा me लगा here. सर आपसे मिलकर. Thank you. And what a great conversation. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Okay, is there anyone who want to ask anyone any question? You can put it in a chat box. One last question, if you want to take it, can you guys put it in a chat box? So there are a lot of people from Maharashtra as well. I can see. So Dr. Parikshit is asking, what is your motto in life, sir? Motto, that's what I told. Purpose of life is yeah.
एंड सबको पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट हैव पर्पस ऑफ लाइफ देन वॉट एवर यू आर डूइंग इज डायरेक्शन लेस. सो एंड उसको समझना और उसको अचीव करना इज अ वेरी सिंपल थिंग. मतलब इट्स वेरी easy to understand the purpose. You just have to Be open and meditation थोड़ा सा Hmm. अगर हम करें तो definitely it helps. You have to be calm and quiet to think कि आपको क्या करना है लाइफ में. Chandrika is ready. From today onwards, I'm your big fan. We are too. Wow. That's amazing. Thank you so much. So thank you, sir. Thank you so much for coming and spending some time with Thank us. you. It really means a lot. Thanks. Thank Bye. you. Thank you.